میرے خیال سے اگر میں کسی دوسری جگہ رہنے کے لیے جاؤں نا تو میرا دل نہیں کرتا دوبارہ کہ میں اس جگہ دوبارہ جاؤں. لنگڑیال کو چھوڑنا پاسبل نہیں ہے. پہلے تو میں نے اس گاؤں کے بارے میں سنا تھا کہ یہ بہت غریب گاؤں تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ اس گاؤں کا نام پورے تحصیل کھاریہ میں یہ کہہ لیں کہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے. ناظرین و سامعین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سرخ بٹن کو پریس کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے. ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے. ایک قدیم خوبصورت گاؤں لنگڑیال، جسے سن 1478 میں رتن گوت لنگڑیال نے ملتان سے آ کر آباد کیا تھا. گجرات سے 40 کلومیٹر، کھاریاں کینٹ سے 18 کلومیٹر، لالا مسا سے 24 کلومیٹر، آزاد کشمیر بھمبر سے 18 کلومیٹر، نشان حیدر مزار راجہ عزیز بھٹی لادیاں سے 3 کلومیٹر، کوٹلہ عرب علی خان سے 3 کلومیٹر، جبکہ 25 کلومیٹر جلال پور جٹاں سے اور سیالکوٹ سے 65 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے گاؤں لنگڑیال. لنگڑیال کا کل رقبہ کم و بیش 1450 ایکڑ ہے اور یہ رقبہ ارد گرد کے 10 دیہات راٹھوڑی، کالو چک، بھانڈگاں، منڈاڑ، بنگیال، لادیاں، سمرالہ، جنڈالا، کوٹلہ اور ککرالی سے ملتا ہے. چونکہ ایک زرعی علاقہ ہے تو کاشتکاری کے لیے لنگڑیال میں 25 ٹیوب ویل موجود ہیں، جن میں سے 3 بابٹا جبکہ 22 جنریٹر ٹیوب ویل ہیں جن سے زمینوں کی کاشتکاری کی جاتی ہے. گاؤں میں 12 ٹریکٹر، 6 ٹرالی اور 5 تھریشر بھی موجود ہیں. لنگڑیال میں بوائز پرائمری سکول 1905 میں، مڈل 1968 میں، جبکہ ہائی سکول 1999 میں بنا. 2005 میں باقاعدہ بوائز درسگاہ کا آغاز ہوا جس میں علاقے کے 83 طلباء نے قرآن پاک حفظ کیا اور 2 طلباء نے علم دین کا عالم کورس مکمل کیا. الحمدللہ بوائز اور گرلز کے لیے دینی مدرسے ہیں جہاں پر طلبہ و طالبات دین اور قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں. گاؤں میں علیحدہ گرلز بوائز ہائی سکول، 2 پرائمری سکول گرلز، 1 پرائمری سکول بوائز اور 3 مڈل لیول کے پرائیویٹ سکول بھی موجود ہیں جو کہ بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کوشاں ہیں. گاؤں کے لوگوں کی توجہ اپنے بچوں کے تعلیم و تربیت اور بہتر مستقبل پر ہے. لنگڑیال کے لوگ پڑھ لکھ کر اچھے عہدوں پر فائز ہیں اور اپنی کامیاب زندگی بسر کر رہے ہیں، جن میں 54 گورنمنٹ ٹیچرز ہیں جن کا مطمع نظر فقط نسل نو کا تابناک مستقبل ہے. مزید برآں 11 وابڈہ ملازم، 25 دیگر شعبہ جات میں گورنمنٹ ملازمین ہیں، جبکہ 37 نجی اداروں میں ملازمت کرتے ہیں. تعلیم سے محبت کا یہ عالم ہے کہ لنگڑیال میں PhD ڈاکٹرز، MSc انجینئرز، BSc، LLB اور بے شمار MA کے طلباء اور طالبات ہیں. ایجوکیشن کی وجہ سے لنگڑیال کے لوگ ہر شعبہ میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں. دلوں کے سکون اور روح کی تسکین کے لیے لنگڑیال میں 7 مساجد ہیں. لنگڑیال میں 6 بزرگوں کے مزار، 2 قبرستان اور 2 جنازگاہیں. اگر بات کی جائے بازار اور مارکیٹ کی تو لنگڑیال میں 20 کریانہ سٹور، 5 حمام، 8 ٹیلرز شاپ، 6 ہوٹل یا ریسٹورنٹ، 3 ڈسپنسری، 1 میڈیکل سٹور، 3 مرغ شاپ اور دیگر شاپس بھی موجود ہیں جہاں سے ضروریات زندگی کی تقریباً ہر چیز بآسانی مل سکتی ہے. اس کے علاوہ یونین کونسل آفس، پوسٹ آفس اور پٹوار خانہ بھی موجود ہے. یہی نہیں، لنگڑیال میں یونائٹڈ بینک UBL کی برانچ اور ATM کی 24 گھنٹے سہولت دستیاب ہے. لنگڑیال میں الیکٹریسٹی یعنی بجلی سن 1964 میں آئی
और इस वक्त पूरे गांव को 10 ट्रांसफार्मर से बिजली की सप्लाई जारी है। अगर बात की जाए आबादी की तो लंगड़ियाल गांव में कमोबेश 1160 घराने हैं, जबकि कुल आबादी तकरीबन 5000 नफूस पर मुश्तमिल है। क़याम पाकिस्तान के वक्त गांव के लोगों का जरिया मुआश फकत खेती बाड़ी था, लेकिन वक्त ने साथ दिया और इस वक्त तकरीबन 70% नौजवान अपने खानदानों की कफालत के लिए बैरून मुल्क मुकीम हैं। इन ममालिक में अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूनान, इटली, स्पेन, साउथ अफ्रीका, कोरिया, सऊदी अरब और दुबई शामिल हैं। गवर्नमेंट मुलाजमीन के अलावा कुछ लोग छोटे कारोबारों से भी मुंसलिक हैं। गांव के ऑफिसर्स गांव के मसाइल को बर वक्त हल करवा लेते हैं। गांव में फलाही कामों के लिए दीनी और दुनियावी शोबों की कमेटियां तश्कील दी गई हैं, जो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को आसान तरीके से सरअंजाम देती हैं। मसलन मसाजिद, कब्रिस्तान, जनाजगाह, मज़ारात और दीगर अहम मकामात की देखभाल की जिम्मेदारी, फ्री एम्बुलेंस सहूलत, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, वाटर कूलर्स, स्ट्रीट लाइट्स और सफाई मुहिम। ट्रांसपोर्ट के हवाले से अगर लंगड़ियाल को खुद कफील कहा जाए तो बेजा ना होगा, क्योंकि लंगड़ियाल में बाइक और रिक्शा से लेकर लैंड क्रूजर और रेंज रोवर जैसी कीमती गाड़ियां भी मौजूद हैं। अगर आदाद शुमार पर एक नजर डाली जाए तो एक बस, 3 हाईएस, 5 कैरी डब्बा, 2 एवरी, तकरीबन 90 कारें, 40 के करीब रिक्शे और 400 से जायद मोटरसाइकिल हैं, जिन्हें लोग अपनी सफरी सहूलियात के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर इलाके में कुछ खास खेल यानी स्पोर्ट्स हुआ करती हैं। जिला गुजरात में लंगड़ियाल की वॉलीबॉल टीम एक नुमाया मकाम रखती है। लंगड़ियाल की क्रिकेट और फुटबॉल टीमों का शुमार भी जिला की बेहतरीन टीमों में होता है। यानी हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। लंगड़ियाल के बुजुर्ग कबड्डी, बैल अखाड़ा और घोड़ा डांस के शौकीन हैं, जबकि नौजवान नस्ल कबूतरबाजी, मुर्गबाजी और सबसे बढ़कर शिकार के शौकीन हैं। झपटना, पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। विवज इस वक्त हम मौजूद हैं लंगड़ियाल में। डिस्ट्रिक्ट गुजरात तहसील खारियां का ये कदीम गांव है लंगड़ियाल, और हमारे साथ मौजूद हैं मेरे उस्ताद मोहतरम के साहबजादे असामा जवेद, और लंगड़ियाल की हिस्ट्री के जो मुकम्मल जिनको अबूरियत है सैफ़ी अपना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम पूछेंगे असामा से कि अपने गांव के बारे में जो मालूमात इनके पास है वो हमें बता दें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आए, हमारे गांव पे डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। पहले किसी ने एक कदम नहीं उठाया। बहुत ज़्यादा सहाफ़ी भी हैं कोडला में, वीडियो प्रोडक्शन का काम नहीं करता कोई। अलबत्ता मेरा खुद ताल्लुक मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया से है। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से मीडिया की डिग्री हासिल की है, और मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है मैं जावेद लंगड़ियाल का बेटा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मैं उनके नक्शे कदम पे चलूँगा। रही बात लंगड़ियाल की, तो मेरे ख्याल से अगर मैं किसी दूसरी जगह रहने के लिए जाऊँ ना तो मेरा दिल नहीं करता दोबारा कि मैं उस जगह दोबारा जाऊँ। लंगड़ियाल को छोड़ना पॉसिबल नहीं है। जब भी आप लंगड़ियाल को छोड़ेंगे तो अजीब से हालात आएंगे, पता नहीं मैं क्या करने जा रहा हूँ। बाकी अगर तालीम की बात की जाए तो जैसा कि मेरा ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में मैं पढ़ता रहा हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ भी हैं इस गाँव की जो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही हैं। यहाँ पे हमारे स्कूल भी हैं, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल भी है और प्राइवेट स्कूल भी हैं। और यहाँ पे एक और ख़ास बात यह है कि आपको ट्यूशन पढ़ाने के लिए असातिज़ा भी मिलते हैं यहाँ पे, अकेडमी भी हैं यहाँ पे लंगड़ियाल में। और अगर मज़े की आपको एक बात बताता चलूँ कि यहाँ की टीमें जो अपना लोहा मनवा रही हैं वॉलीबॉल में, जिनमें माया नाज प्लेयर माजिद मुनीर साहब लंगड़ियाल जो कि अभी इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, उसके बाद मियाँ सजाद हो गया, और साईं हसन साहब जो कि वॉलीबॉल के माया नाज प्लेयर रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा एक और ख़ास बात एक बंदा जिसका नाम मैं लेना चाहूँगा, वाजिद लंगड़ियाल, आप जानते ही होंगे, व्यूज़ को भी पता होगा कि वाजिद लंगड़ियाल जो है ना एक बहुत अच्छा प्लेयर है। हर लिहाज से मुकम्मल, हर लिहाज से जो है ना गाँव बहुत आला है। आप लोग भी आइए, विज़िट कीजिए।
गांव का रकबा अगर बात की जाए तो गांव का रकबा भी बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में मज़ीद मालूमात आप सैफ़ी से ले लें क्योंकि वो बेहतर यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, बल्कि मेरी जो दिल है वो खुश हो जाएगा। मैं अपने उस्ताद मोहतरम आपके वाला साहब जो हैं जवेद साहब, उनके बारे में मुख्तसर सा कोई वाक़या या कोई अच्छी सी बात बता दें। तब जब उनकी डेथ हुई थी तब मैं 4 साल का था, तो अलबत्ता इतना मुझे कोई वाक़या याद नहीं पड़ता, लेकिन हाँ लोगों से मैंने सुना है कि वो ना बहुत ही अच्छे इंसान थे और लिखारी बहुत अच्छे थे। उनके हाथों की लिखी हुई अभी भी चीज़ें हमारे घर में मौजूद हैं। जो भी अखबारें थी वो एडिट करके लाते थे। जितनी भी अखबारें उन्होंने अपने दौर में पब्लिश करवाई हैं वो अभी भी हमारे घर में मौजूद हैं। और एक और मज़े की बात बताऊं कि उनके वो पुराने ज़माने में होता है टाइप राइटर जो करते थे, जिससे हाथ लिखा करते थे, मशीन थी वो भी अभी हमारे घर में मौजूद है। मैनुअल टाइपिंग कहते हैं उसे। जी जी। इसके अलावा और ख़ास बात यह है कि जब मैंने 9th क्लास पास की 9-10, उसके बाद ये बड़ा कठिन मरला होता है स्टूडेंट के लिए कि वो कौन सी फील्ड ज्वाइन करे। तो मेरे ख्याल में यही था कि मैं अपने वालिद मोहतरम की सीट सेलेक्ट करूं और उनके मिशन को आगे लेके चलूं। इसलिए मैंने मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया में BS ऑनर किया है। और बड़े आज़ाद की बात है कि मैं इस गांव का हिस्सा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये लोग मुझे एज एन एंकर किसी भी TV चैनल पर देखेंगे इंशाल्लाह। जी, जहाँ पे जवेद साहब की बात की जाए तो मेरी जो सहाफ़त की पहली सीढ़ी हैं और पहले मेरे उस्ताद हैं जिन्होंने मुझे सहाफ़त में एंटर किया, मैंने मैट्रिक क्लियर किया और मैं आया अपनी गज़ल शाया करवाने के लिए। लंगड़ियाल चौक में इनका ऑफिस था, तो वहाँ पे वो सुर्खियाँ काट के लगा रहे थे। तो पहले 2 घंटे उन्होंने मुझे सुर्खियों पे लगाया काटने पे। जब अखबार तैयार होगी तो मेरे वाली गज़ल उन्होंने डाली, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि जिस भी फील्ड में आओ और ईमानदारी से काम करो तो इंशाल्लाह नाम बनेगा। और जाते हुए जब मैंने अखबार ज्वाइन की और एंड पे मुझे उन्होंने बोला था कि मुझे मेरा तहल्लुस ख़याली है। उन्होंने बोला ख़याली तुम एक दिन बहुत ज़्यादा कामयाब होके अपना नाम बनाओगे। जी, हमारे साथ लंगड़ियाल की जानी पहचानी हस्ती सैफ़ी अपना साहब मौजूद हैं और इनको ये शरफ़ है कि ये लंगड़ियाल की मौजूदा और गुज़री हुई तमाम जो हिस्ट्री है और तकरीबन लंगड़ियाल में जो भी मतलब सारा सिस्टम है ये इनसे बाखूबी वाक़फ़ हैं। इनसे पूछते हैं लंगड़ियाल की क्या हिस्ट्री है और मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भाई ख़याली का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि नंगड़ियाल की हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन का। मैं सबसे पहले तो नंगड़ियाल के बारे में बताना चाहता हूँ कि नंगड़ियाल क्या है। नंगड़ियाल एक पर्सन नेम है। ये मुल्तान से 1112 में ये ज़िला गुजरात के एक कस्बे टाइप गांव में इन्होंने आके अपना डेरा जमाया और इनका ये कह लें गुजरात के एरिए में ये एक नंगड़ियाल गांव है। इसका तकरीबन 1400 एकड़ रकबा जो नंगड़ियाल के नाम पर मौजूद है। इसके साथ साथ यही बताना चाहूँगा कि ये गांव तहसील खारिया का अमीर तरीन गाँव में शुमार होता है। प्लस इसके इर्द गिर्द 10 बड़े गांव हैं और जिसमें सबसे मेजर गांव मैं कहूँगा मेजर अजीज़ भट्टी का गांव, जो कि हमारे गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। और साथ ही हमारे पास यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये कह लें कस्बा टाइप है कोटला रबल, हाँ वो हमारे से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा नंगड़ियाल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बुज़ुर्गों ने यहाँ पर बहुत सी काविशें ये कह लेंगे कि इस गाँव के लिए। सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने हमारे गाँव के लिए इतनी ज़्यादा काविशें की, जिन्होंने हमारे गांव में 2 बड़े हाई स्कूल गर्ल्स और बॉयज़ बना के दिए। प्लस ये कह लें कि ये गांव के 2 हमारे ये कह लें कि जामिया दर्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर यूनियन काउंसिल भी है और इसके अलावा अभी कुछ ही साल पहले यहाँ पर दवाखाना भी बना। हमारे गांव में अल्हम्दुलिल्लाह 70% लोग बरूने मुल्क हैं जो वहाँ पर अपना रिज़्क़ के लिए गए हुए हैं। और पहले तो मैंने इस गांव के बारे में सुना था कि ये बहुत गरीब गांव था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इस गांव का नाम पूरे तहसील खारिया में
یہ کہہ لیں کہ چمک رہا ہے, دمک رہا ہے. اس کے علاوہ اس گاؤں میں آپ لوگ جتنی بھی انفارمیشن لیں گے آپ کو ملے گی. صاحب یہاں پہ میں آپ سے ایک اور کوشچن کروں گا کہ آپ کے گاؤں کا حدود اربا کیا ہے اور گرد و نواح میں کون کون سا گاؤں ہے, مغرب میں, مشرق میں, اس کی تفصیلات بتا دیں. ہاں, ہمارے گاؤں کے ارد گرد یہ کہہ لیں کہ مشرق میں ککرالی ہے, کوٹلا ہے, صادقآباد ہے, اور اس سائڈ پہ جائیں گے ہم جنوب کی طرف لادیاں ہے, سمرالہ ہے, بنگیال بھی, شامپور بھی, اس کے علاوہ مڈال, مانڈگراں اور ساتھ لٹھوڑی, ساتھ کالوچک. ہمارے گاؤں کے ارد گرد 10 گاؤں کا رقبہ یہ کہہ لیں کہ اٹیچ ہوتا ہے. اور سیفی صاحب آپ کے گاؤں کا کافی عرصے سے میں سن رہا ہوں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, تو وہ بھی ناظرین سے شیئر کر دیں کہ وہ کون سا معاملہ ہے. ہمارے گاؤں کا کچھ رقبہ یہ کہہ لیں کہ استعمال کے 98 کا مسئلہ بنا ہوا ہے. وہ یہ کہہ لیں کہ لوگوں نے یہاں پر زمینوں پر ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں, اور میرے خیال میں وہ زمینیں ہمارے کچھ جو لیڈران تھے ان لوگوں نے ہمارے غریب لوگوں کی زمینیں اپنے نام کی ہوئی ہیں. پلس یہ کہوں گا کہ میں نے یہ کہہ لیں کہ جو ہمارے یہ کہہ لیں کہ جنگیردار لوگ تھے جنہوں نے رقبہ سوم اور چہارم خریدا اور اول جو قیمتی رقبے ان پر قبضہ کیا ہوا ہے, یہ ہمارے گاؤں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور میرے خیال میں 20 سے بلکہ 30 سال ہو گئے ہیں اس رقبے, یہی اسی طرح ہمارے غریب لوگ پستے جا رہے ہیں اور ہماری کسی نے آواز نہیں سنی. پورے پاکستان میں نے کافی دفعہ یہ کہہ لیں کہ لوگوں کو کہا, لیکن کوئی ہمارے استعمال کے بارے میں کوئی بھی حل نہیں کر رہا. ویورز اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. آپ کا میزبان محمد علی خیالی. دیکھتے رہیں DNA نیوز اور ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ گاؤں کی جو بنگیال کی ہسٹری ہے اور ڈاکومنٹری ہے. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ سٹیپ 7 والا گاؤں بنگیال ہے, تو آپ کو ویو بھی دکھائیں گے پورے گاؤں کا, اور مزید تفصیلات بھی جو ہے وہ انشاءاللہ اسی ڈاکومنٹری میں آپ کو دکھائیں گے. حاصل ہو. سکون قلب کے ساتھ حقیقی معنوں میں عمرہ کرنے کے لیے سب سے قابل اعتماد اور گورنمنٹ سے منظور شدہ ایجنسی آزاد ملت ایئر ٹریولز کوٹلا. 14، 21 اور 28 دن کے عمرہ پیکیجز، تمام ایئر لائنز کے ٹکٹس اور وزٹ ویزا سروسز. آزاد ملت ایئر ٹریولز، مین روڈ، کوٹلا، عرب علی خان. MD نوید اکرم.